So now again come to the point. So please keep your mic mute during the session. And if any query or question is there, you please write in the chat box so that we can address in the last end of the session. Though yoga is a more practical subject than the theory, but looking to the time schedule, I will try to give demos through pics. And in my second part of demonstration through slides, I will show some pics also. And we give live demo also wherever possible. So now we come to the today's topic, Indian tradition of well-being, yoga and demonstration. Basically, this is in two parts. First is the basic introduction of the well-being, and second part is related to the how to relate with the yoga practices. So we always start our sessions with the prayers. So though our program has already been initiated with the prarthana, but the two lines from my side. Asito ma sadgamaya tamso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. So let us start our topic. The start is wellness. What is wellness? एंड इन कोइंसिडेंस है कि 21 जून जो है इंटरनेशनल योगा डे, वो भी बिल्कुल नियर आ रहा है और ये प्रोग्राम भी आपने रखा है, बिल्कुल राइट टाइम पर रखा है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं. सो एज पर हु, या इन नॉर्मल सेंस में अगर अपन बात करें तो हु इज हेल्दी पर्सन और हु इज वेल पर्सन, या स्वस्थ आदमी है. तो नॉर्मली हम कहते हैं कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है या मेरे को इलनेस नहीं है, देन आई एम स्वस्थ हूँ या आई एम हेल्दी, बट दैट इज नॉट सो. As per World Health Organization, the wellness का जो definition दिया है, उन्होंने दिया है wellness is a state of complete physical, mental and social being, and not merely absence of disease and infirmity. Today, all dimensions of wellness are interrelated and crucial to a fulfilling life. Nowadays, the most important word is immune system. How to improve immune system? There are so many ways, by medication, but looking to our traditional life, yoga and pranayam and meditation or dhyan, these are ancient practices which can be done. So we divide the wellness or health in 5 dimensions. पहला है physical wellness, शारीरिक स्वास्थ्य. सेकेंड है मेंटल वेलनेस, मानसिक स्वास्थ्य. इमोशनल स्वास्थ्य. आजकल ऑक्यूपेशनल वेलनेस भी जरूरी है, बिकॉज वी आर रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन ऑल्सो. इफ वी आर नॉट अर्निंग मेंबर्स, देन इट गिव्स अस स्ट्रेस ऑल्सो. देन अगेन कम्स फाइनेंशियल वेलनेस इज ऑल्सो अ पार्ट, बिकॉज विदाउट फाइनेंस यू कैन नॉट डू एनी रियल प्रैक्टिस इन रियल सेंसेस. एंड इन द लास्ट, एनवायरमेंटल wellness, or we can say awareness. With the environment awareness, nowadays we are feeling the shortage of oxygen. This is also due to lack of forests and trees, etc. But हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लोग बाग इसकी तरफ अवेयर हो रहे हैं. तो हम देखते हैं कि फिजिकल वेलनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो उसके लिए है एक्सरसाइजेज हैं डिफरेंट, जिसमें आप जिम को भी ले सकते हैं. ऐसा नहीं कि योग का मतलब है कि फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए यू कैन वॉकिंग है, ट्रैकिंग है. और उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि अर्ली राइज इन द मॉर्निंग, अर्ली अवेकनिंग, बिकॉज वी आर रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑल्सो. सो देयर आर सम प्रिंसिपल्स, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, डाइट also. So in ancient times, the giants were busy without any extra efforts. For example, agriculture. That was their profession, or any other profession. Then already physical activities was being done there. उनसे खेती का काम करते हैं या कोई दूसरा व्यवसाय करते हैं तो उसमें उनकी फिजिकल एक्सरसाइज ऑलरेडी हो जाती है.
सेकंड आता है नहाने का काम या स्विमिंग। पुराने जमाने में लोग बाग तालाब पे नहाने जाते थे, तो उससे ऑटोमेटिक स्विमिंग भी हो जाती, एक्सरसाइज भी हो जाती थी और नहाना भी हो जाता था। देन कम्स वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, then time came with the cycling, trekking, etc. And for ladies especially, there are times that all the work was being done by home. That is housekeeping, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, पानी भरना, चक्की चलाना। चक्की चलाना जो आजकल बिल्कुल गायब हो गया है, डिमोलिश हो गया है, लेकिन ये वेरी मच गुड एक्सरसाइज आई कैन से। इतनी बढ़िया एक्सरसाइज थी कि उसमें आपके पूरे एब्डोमिनल से लेके आपके श्वास तक, ब्रीदिंग एक्सरसाइज तक भी होती थी, कपड़े अपने हाथ से धोते थे। और मैं ये मानता हूं कि आस्था जिसको कहते हैं अपन, बिलीफ सिस्टम, ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी वेलनेस के लिए। अगर आप में विल पावर है तो यू कैन डू एनीथिंग। इसके अलावा पुराने जमाने में कुछ ट्रेडिशंस भी हुआ करते थे, जैसे ईयर पियर्सिंग है, कानों में जो छेद करता है, इट इज आल्सो एन एक्यूपंक्चर टाइप ऑफ। ड्रिंकिंग वाटर इन कॉपर वेसल्स, वॉकिंग बेयरफुट ऑन ग्रास, हरी घास के ऊपर पैदल चलना जो कि आंखों की ज्योति बहुत बढ़ाता है। ईटिंग विद हैंड्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउअडेज वी आर यूजिंग स्पून्स, हम चम्मच से खाना खाते हैं, लेकिन हम देखेंगे तो हमारी जो पांचों उंगलियां हैं हमारे पांचों तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमारी सबसे लिटिल फिंगर है वो आपके वाटर या जल को रिप्रेजेंट करती है, अनामिका आपके पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, मिडिल फिंगर आपकी आकाश तत्व को, स्काई को रिप्रेजेंट करती है, आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आपको एयर को या वायु को रिप्रेजेंट करती है, और अंगूठा थंब ये जो है आपको अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जब हम हाथ से खाना खाते तो पांचों तत्वों का समावेश होता है, all the 5 elements of the earth, because everything in the Brahmand or universe is made of 5 elements, which I have described just now. Then second part आता है कि how to live healthy। उसके लिए सबसे बड़ा फ्रेश एयर, जो अभी आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल होता जा रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन एटसेट्रा। तो पुराने जमाने में गांव में आज भी उनको फ्रेश एयर होती है, तो उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है। फिजिकल एक्सरसाइज भी ऐसी चीज है कि या तो आप अलग से करें घर पे, या आपका ऑटोमेटिक ऐसा आपका व्यवसाय है, आपका प्रोफेशन है, तो उसमें ऑटोमेटिक ही होता है। उसके अलावा नेक्स्ट टाइम आता है प्योर डाइट। प्योर मतलब है मेरा विदाउट कंटामिनेशन और एडल्ट्रेशन। नाउअडेज पैक्ड फूड का चलन चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत मिलावट है। अभी 2 दिन पहले कुछ सर्वे आया था, उसमें 30% जो पैक्ड फूड होता है वो खाने के योग्य नहीं होता है। लेकिन चूंकि हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि उस पे स्ट्रेस फ्री रहना, आजकल हर इंसान को स्ट्रेस है, राइट फ्रॉम चिल्ड्रन टू एडल्ट्स, सर्विस क्लास, लेडीज, एडल्ट्स, not only due to pandemic, other factors also. But nowadays it has become a very crucial position that stress, and we have to manage stress. It can be possible through yoga, pranayam, and meditation without expending anything. Then comes sound sleep. It is very, very important factor. It is not only a sleep. Sound sleep means if you are taking 6 to 8 hours sleep, sound sleep is only 3 to 4 hours. If you are sleeping 12 hours, 10 hours, it doesn't mean that you are sleeping. It is the sleep, but not a sound sleep. So for a good health, it is most important factor that is sound sleep. हम योग में एक योग निद्रा करवाते हैं, उसमें हमारा एक 45 मिनट्स का सेशन रहता है। तो उस 45 मिनट्स के सेशन में आपको कम से कम 3 घंटे की जो साउंड स्लीप होती है उसका इफेक्ट मिलता है। तो कभी हुआ तो ऐसा सेशन भी हम लेंगे जिसमें आपको योग निद्रा का पूरा अभ्यास करवाएंगे। तो साउंड स्लीप जब होती है, आप जब उठते हैं तो आपको ऐसा फ्रेश होता है जैसे कि आप बिल्कुल गहरी नींद से उठे हैं और आप अगले दिन आपका काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है आजकल मॉडर्न साइंस में सो मेनी इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। मेडिकल साइंसेज, एलोपैथी में बहुत ही प्रोग्रेस किया है, टेस्ट होते हैं,
लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। उस टाइम सिर्फ आपकी नाड़ी को देख करके आपको बता देते थे कि आपको कौन सी बीमारी है, पल्स रेट जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा एक बात मैं और कहना शेयर करना चाहूंगा आपसे कि आपकी जो बॉडी है वो हर चीज का अलार्म देती है। आपको अगर बुखार भी आएगा तो आपको उससे कुछ आवर्स पहले आपको उसके सिम्टम्स मिलेंगे। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो भी आपको उसके सिम्टम्स मिलेंगे। लेकिन जब तक अपन उसको इग्नोर करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। अदरवाइज नेचर ने आपको इतना बढ़िया बना रखा है सिस्टम कि उसमें आपको अलार्म मिलता है, लेकिन अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो उसका हमको बेनिफिट नहीं मिलता है। अब हम थोड़ा चलते हैं टाइप्स ऑफ थेरेपीज की तरफ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलोपैथिक, जो आज के टाइम में बहुत ही जरूरी है। और आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथिक, दिस इज नथिंग, बोथ आर इक्वली गुड और अपनी अपनी जगह दोनों ही ठीक है। आयुर्वेद के जहां तक सवाल है उसमें जड़ी बूटियां, वनस्पति आदि का काम भी आता है। लेकिन जब एक्यूट चीज कोई होती है, जैसे आपको कोई सर्जरी करानी है तो आपको एलोपैथी के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन कोई डाइजेशन सिस्टम टाइप है तो उसके लिए आपको यू कैन डिपेंड ऑन आयुर्वेदिक। और ऐसा नहीं, आयुर्वेद बहुत पुराना है, 1000 years एगो। एक सुश्रुत करके वो थे जो अच्छे सर्जन थे आयुर्वेद के। उस टाइम बेहोश करने का भी कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सर्जरी किया करते थे। धन्वंतरी एक ऋषि हुए हैं, वो मेडिसिन के बहुत बड़े ज्ञाता हुए हैं। उसके अलावा कुछ होम्योपैथी भी है, वो भी अपनी जगह पर बहुत अच्छी है, उसका भी इफेक्ट होता है, स्लो है लेकिन स्टडी है। उसके बाद है यूनानी है, यूनानी भी बहुत पुरानी, यूनान से इसका उद्भव हुआ था, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनान। देन आती है नेचुरोपैथी, ये है प्राकृतिक चिकित्सा। इसमें सभी चीजें प्राकृतिक तरीके से की जाती है, अभी हम इसको डिटेल्स में नहीं लेंगे। इसके अलावा आता है आपका अल्टरनेटिव थेरापीज, ये तो मेजर थेरापीज हो गई 5। अब आती है अल्टरनेटिव, जिसमें हम देखते हैं एक्यूप्रेशर। आप जानते ही हैं शरीर में बहुत ही जगह पॉइंट्स हैं अपने, उसके द्वारा आप हाथ में पॉइंट्स हैं, पाँव में पॉइंट्स हैं, तो एक ही हाथ से आप पूरे शरीर के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं। सिमिलरली एक्यूपंक्चर जो बेसिकली चाइनीज थेरेपी है, उसके द्वारा स्मॉल पिंस होती है, उनको उनके जो पॉइंट्स हैं, लेकिन ये किसी एक्सपर्ट की राय में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठ के करें, कोई एक्सपर्ट आपको बता दे, उसके गाइडेंस में आपको करना चाहिए। देन आती है एरोमाथेरेपी। आजकल जो सुगंध होती है अलग अलग, किसी को एलर्जी होती है, किसी खुशबू से, किसी को क्या होती है, तो उसकी भी अपने एक थेरापी होती है। रेकी, रेकी एक ऐसी थेरापी है जिसमें आपको सामने नहीं होना पड़ता। आप मेरे से 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं और आई एम हियर, तो आई कैन एक्सचेंज माई एनर्जी एंड आई कैन हील थ्रू रेकी। उसके अलावा मसाज थेरापी है, वाटर थेरापी, वाटर इटसेल्फ इज ए मेडिसिन। वाटर थेरापी से आपको कब कितना पानी पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, अभी जैसे अभी पेंडेमिक में अभी आपको कहते हैं कि आप ल्यूक वार्म वाटर पीजिए सो दैट आपका थ्रोट क्लियर रहे। और इसी तरह से आपको खाने से पहले पीना चाहिए, खाने के दौरान, ड्यूरिंग द मील यू शुड नॉट टेक द वाटर, आफ्टर हाफ एन आवर यू कैन टेक। और आजकल एक साउंड थेरेपी भी है, आपको म्यूजिक के साथ आपको थेरेपी दी जाती है। साउंड थेरेपी में आपका जो पूरा वेव्स, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं अपन, वो आपके पूरे शरीर में जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आइदर पार्टिकल और आपके वेव्स के रूप में पूरे शरीर में चल रहा है, तो उसके द्वारा भी आपको हीलिंग मिल सकती है। एक और पुराना एक सिस्टम था जिसको हम बोलते हैं नाभि बोलते हैं, नेवल, जिसको पैसूटी भी कहते हैं, धरण भी कहते हैं, डूटी गोला भी कहते हैं, बेली बटन भी कहते हैं, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। तो इसके लिए आप सभी जानते हैं, यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट जन्म से 9 महीने पहले तक जो बच्चा होता है गर्भ में, वो नाभि के द्वारा ही अपनी ब्रीदिंग लेता है, फीडिंग लेता है और 9 महीने तक उस उल्टी अवस्था में रहता है। लेकिन जो ही वो दुनिया में कदम रखता है, उसके बाद उसको नाभि को या नाल जो होती है उसको उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है। लेकिन उसी जगह पर आपका सेंटर ऑफ द बॉडी जिसको बोलते हैं, वहां पर मणिपुर चक्र है, एनर्जी सेंटर है, सबसे पावरफुल जो सेंटर है, एनर्जी सेंटर या चक्र बोलते, अभी मैं डिस्कस करूंगा जो 7 मेजर चक्र है उसके बारे में।
तो इसके लिए क्या होता था पहले कि कोई कहता मेरे को उल्टी हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है, कोई कहता मेरे को डिसेंट्री हो रही है या पेट दुख रहा है, तो उसके लिए उस जो भी अपनी जो नाभि होती है या बेली बटन होता है, इसको डिसलोकेशन मानते हैं। कभी आपने एक्सरसाइज कर ली कोई हैवी, कोई आपने वजन उठा लिया, तो उससे ये डिसलोकेट हो जाती है। हालांकि एलोपैथी वाले इस चीज को नहीं मानते, बट इट इज वेरी प्रैक्टिकल। और हमारा जो योगा सेंटर है, वो हमारे गुरु थे, उन्होंने यहाँ कम से कम 50,000 लोगों की ये ठीक की है, 50,000 प्लस। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। फॉरेन में भी आजकल इसको मानने लग गए हैं, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। उसके अलावा कुछ होती है क्लींजिंग प्रोसेसेस, जिसको हम शुद्धि क्रिया कहते हैं। जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा, तब तक आप न तो कोई योगा कर पाएंगे, न प्राणायाम कर पाएंगे, और न आप ध्यान कर पाएंगे। ये सब स्टेप्स में चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले आता है धोती। धोती मीन्स आपका मुंह पूरा साफ होना चाहिए, क्लींजिंग, गला साफ होना चाहिए। बस्ती, जैसे आपने एनिमा का नाम सुना होगा, आपका बोवेल क्लियर करते हैं इससे। नेति, ये भी 2-3 तरह की होती है, जल नेति, सूत्र नेति, घृत नेति वगैरह। तो इसमें क्या करते हैं कि ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं और उसको नाक के एक हिस्से से डालते हैं और दूसरे हिस्से से निकालते हैं। तो नेजल में जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो बाहर रहते हैं। उसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन का डर भी नहीं रहता है। हालांकि प्रैक्टिकल बताना अभी संभव नहीं है यहाँ पे, लेकिन कभी आपको मौका मिला तो। नेक्स्ट आता है कुंजल। इसमें क्या करते हैं कि हम लॉट ऑफ वाटर पीते हैं, जितना पी सकते हैं, और जब इनटेक फुल हो जाता है तो उसके बाद उसको वापस एज इट इज उसको दोनों उंगलियां डाल के वापस बाहर नहीं, तो आपके जो पेट में जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो सब बिल्कुल बाहर आ जाती है, और अपर पोर्शन आपका पूरा साफ हो जाता है, राइट फ्रॉम स्टोमक टू आपका श्वास नली या गला जो है जिससे अपन खाना खाते हैं, तो वो आपका एकदम से साफ हो जाता है। एक और शुद्धि क्रिया आती है नाउली, जिसमें पेट को अंदर करके नाभि को चारों ओर घुमाया जाता है। और उसके बाद लास्ट में आता है कपालभाति। मेरे ख्याल से आज की डेट में कपालभाति से सभी परिचित हैं, और स्पेशली जो स्वामी रामदेव जी हैं, उन्होंने इसको घर घर तक पहुंचाया है। इसको हालांकि प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन ये प्राणायाम नहीं होकर एक शुद्धि क्रिया है। बॉडी को तैयार करते हैं उसके लिए, जो नेक्स्ट अपन आसन करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए कपालभाति इतना बढ़िया है कि इसमें आपका पूरा राइट फ्रॉम कपाल मीन्स आपका फॉरहेड, और भाति मीन्स शाइनिंग। तो जब आप ये क्रिया करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके जो ऑरा होता है वो चमकता है, और कपालभाति से करता है। इसका मैं थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूँ। इसमें क्या करते हैं, आप पहले श्वास को पूरा बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद लेना नहीं है, सिर्फ इसमें श्वास को छोड़ना छोड़ना और छोड़ना। पैसिव श्वास अपने आप अंदर जाती है, इसलिए इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। और जब आप थक जाए उसके बाद रुक जाए, आप देखेंगे आपको एक्सपीरियंस होगा, चेंजेस होंगे जो आपके शरीर में, और उसके बाद आप कोई भी क्रिया करेंगे तो उसके लिए आता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था चक्रास के बारे में, देयर आर मेजर 7 चक्रास, राइट फ्रॉम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये दीज आर एनर्जी सेंटर, दे आर नॉट ऑर्गन्स। और हर चक्र का अपना अलग एनर्जी सेंटर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कुंडलिनी जागृत करना। अगर आपके सभी सेंटर्स एनर्जी के जागृत तो जब तक कुंडलिनी, ये वेरी डिफिकल्ट, और हमको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो मैं थोड़ा सा बता दें कि लोकेशंस बता देता हूँ। मूलाधार जो चक्र है वो आपके एनस के जस्ट ऊपर होता है, जहां पे अपना स्पाइनल कोड खत्म होती है उसके बेस के ऊपर। उसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र, जो अपने जेनेटल ऑर्गन्स है उसके जस्ट पीछे, और आपकी जो नेवल है उसके थोड़ा सा नीचे होता है। देन आता है मणिपुर चक्र, ये आपका जो नेवल होता है या नाभि होती है उसके पीछे की ओर होता है। देन आता है आपका अनाहत चक्र, दैट इज हार्ट, नियर हार्ट। हार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो आपके अनाहत चक्र से गवर्न होती है। देन कम्स विशुद्धि चक्र, जहाँ आपका टाउनसिल होता है, गला जो है आपका, थायराइड जिसको बोलते हैं अपन, यहाँ पे विशुद्धि चक्र होता है। तो गले संबंधी कोई भी होता है तो उसके लिए आज्ञा चक्र होता है, सॉरी विशुद्धि चक्र है। उसके बाद आता है नंबर आज्ञा चक्र का।
आज्ञा चक्र होता है दोनों भौं के बीच में, आपके दोनों जो आईब्रोज हैं उसके बीच जहाँ पर अपन बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं उस जगह पर, और दिस कंट्रोल्स होल बॉडी। तो आज्ञा चक्र है। इसके बाद लास्ट में आता है सहस्त्रार चक्र, जो कि आपके कपाल में स्थित होता है, और इसका शेप जस्ट लाइक लोटस, आई कैन से, कमल होता है ना, कमल का फूल, उस तरह से होता है। और दिस इज द मेन सोर्स ऑफ गेटिंग कॉस्मिक एनर्जी, विच इज अगेन वेरी एसेंशियल। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। अगर आप जागते रहेंगे तो आपको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में मिलेगा। तो उसमें एक ऐसा, बिकॉज वी ऑल आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स और ब्रह्मांड, अहम ब्रह्मास्मि। तो यूनिवर्स का अपने से पंच तत्व से बना हुआ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, और लास्ट में भी हमको वापस यूनिवर्स में ही जाना है या पंच तत्व मिलना है। आत्मा अपनी जगह जाएगी, अपना जो स्थूल शरीर जिसे कहते हैं फिजिकल बॉडी, वो भी अगेन वापस पंच तत्व में विलीन हो जाती है। अब एक और चीज आती है, वो है ओम का नाम स्वरूप। दिस इज कॉल्ड द साउंड ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहले जो अगर साउंड हुई थी तो वो थी ओम की, और इसके सो मेनी बेनिफिट्स। दिस इज नॉट ओनली ए वर्ड, और बेसिकली दिस कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स इन इंग्लिश, ए, यू एंड एम, और हिंदी में अ, उ एंड म। But in practice, if you join them, that comes Om. तो अ represents the lower part of the body, मीन्स कमर से नीचे का भाग वो अ को रिप्रेजेंट करता है, मिडिल पार्ट आपके ऊ को रिप्रेजेंट करता है, और म या एम जो है वो आपके गर्दन से ऊपर के भाग को रिप्रेजेंट करता है। कि कोई भी आपका डिजीज होती है वो होती है एज पर आयुर्वेदा, वात, पित्त और कफ। वात आपके वायु जनित रोग जो आपके शरीर के निचले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पित्त आपके स्टोमक एरिया या मिडिल पार्ट से, और गले संबंधी या कफ और न्यूरो प्रॉब्लम्स होती है वो आपके गले के ऊपर की तरफ होती है। तो इन तीनों का अगर जब जिस दिन बैलेंस बिगड़ता है तो उसके बाद कोई भी बीमारी घर पर आती है। तो उसके लिए जैसा ओम का बताया, हम सिर्फ एक बार आप ओम चेंट करिए, माइक को म्यूट ही रखिएगा, अनम्यूट नहीं करें, और आप देखेंगे इफेक्ट इसका कि आप एक बार लंबी गहरी श्वास के साथ ओम का चेंट करिए, और अगर आप आंखें बंद करेंगे तो उसका इफेक्ट और ज्यादा आएगा। So this is a sound of the universe, that is called। और इसके मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ, इसके हंड्रेड्स ऑफ बेनिफिट्स है, लेकिन आई विल गिव यू सम बेनिफिट्स। इसके आपको चेंट करने से साउंड स्लीप आती है, और ग्रुप में इसको करने का एक एडवांटेज ये है, जैसे आप अगर अकेले हैं और 50 टाइम्स करते हैं और एक 50% आप 1 टाइम करते हैं तो सेम इफेक्ट है उसका। जिस जगह आप करते हैं, अगर मान लो ग्रुप में कर रहे हैं, तो उसका जो ऑरा होता है उस प्लेस का वो एकदम से पॉजिटिव हो जाता है। और इसके जो इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो है साउंड स्लिप आती है इससे, आपका जो स्पाइनल कोड है, आपका जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है, आपके लंग्स एक्सपांड होते हैं इससे। आप जितनी लंबी गहरी श्वास लेंगे आपके लंग्स ज्यादा फूलेंगे, उसमें ज्यादा एयर जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, तो वो अच्छे से वर्क करेंगे। देन कम्स आपका डाइजेशन सिस्टम, बिकॉज आपका जो अ की आवाज निकलती है वो नाभि के यहाँ से आती है, ऊपर आते आते आपके हार्ट तक आती है, और म की आवाज आपके लिप्स से या होठों से आती है। तो आपका जो ही जहाँ से शुरू होता है डाइजेशन सिस्टम, वो आपका प्रॉपर होता है। फटीक या थकान जिसको बोलते हैं अपन, अगर आप बहुत थके हुए हैं और अगर आप 5 मिनट 5 और 10 टाइम्स ओम का चेंट कर लेते हैं तो आपकी फटीक भी दूर हो जाती है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, कभी यू आर फीलिंग स्ट्रेस, देन गो एनी एकांत में चले जाइए, लॉनली प्लेस पे, 5 to 10 टाइम्स ओम चेंट करिए, stress will be reduced. Anxiety or fear, they are also common problems.
looking to the lifestyle. So if we chant Om, then anxiety से भी relief मिलता है. Then comes aura. Aura, you know, this is the part of our, which is not visible, but there are some cameras from which we can see our aura. अगर आपने देखा हो तो जो महापुरुष हैं या अपन जिनको भगवान मानते हैं, उनके चारों तरफ एक लाइट का सर्कल होता है. वो रिप्रेजेंट करता है कि उनमें एक ऑरा है. अगर आप किसी भी महापुरुष से या संत से मिलेंगे तो आप उनके चेहरे की तरफ देखेंगे तो उनमें एक विशेष तेज कह सकते हैं अपन. उनके चेहरे से एक अलग ही आभा मंडल जिसको बोलते हैं वो दिखेगा आपको. तो आप कहते हैं फेस इंडेक्स ऑफ द हार्ट. तो आप जितना कोई आदमी जिससे योगा करता है, कोई प्राणायाम करता है या दूसरी भी कोई भी विधा करता है, अपने आप में एक्सपर्ट है, तो उसके चेहरे से आपको उसका ऑरा ही बता देगा कि ही इज समथिंग स्पेशल विदाउट स्पीकिंग ए सिंगल वर्ड. तो इससे ऑरा की भी बात होती है. तो नाउ वी कैन कम टू आवर सेकंड पार्ट एंड आई रिक्वेस्ट फॉर स्लाइड शो. कैन वी हैव now second part is the how yoga can help. Yoga is also very vast subject, but we will summarize it. So can we share the PPT screen? जब तक PPT चलती है हम बात करते हैं. जब योगा की जब बात आती है तो योगा कोई नया सब्जेक्ट नहीं है. इट इज वेरी वेरी एंशिएंट है. वी कैन से 4000 BC से चल रहा है एंड वेदास से इसका शुरुआत होती है. और फर्स्ट गुरु जो माना गया है इसको वो है आदि शिव, जिनको शिव कहते हैं अपन. ही वाज द परफेक्ट मैन ऑफ द योगा, इसीलिए आदि शिव जो योगा है. उसके बाद इसका स्कल्पचर हुआ इंडिया में. सिस्टमेटिकली जो इसको किया वो थे पतंजलि ऋषि, जिन्होंने 150 BC में इन्होंने इसको कंपाइल किया. अलग अलग जगह से उन्होंने सूत्रों को इकट्ठा किया और उन्होंने 195 सूत्र लिखे पतंजलि योग सूत्र के द्वारा. और वो राइट फ्रॉम फर्स्ट सूत्र से लेके 195 उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाउ टू लिव ए गुड लाइफ. स्पिरिचुअल अल्टीमेट गोल इज स्पिरिचुअल. सो उन्होंने जो बताया, तो should I continue sir without PPT? I think Mr. Ranjoi is trying for that PPT. जब तक नहीं होता तब तक आप रखें चालू हो तो क्या. Okay sir, I will continue. So उसके अलावा हम it's already on the process. Okay. You carry on sir. तब तक मैं थोड़ा करता हूँ इसको. Okay sir. उसके बाद नंबर आता है हमारे जो ऋषि थे हिरण्यगर्भ जिसको नाम बोलते हैं हम. उनको भी हम फाउंडर ऑफ द योगा मानते हैं. बिकॉज आदि शिव तो बहुत हजारों साल अपन वी डोंट नो द एरा कब हुआ है, लेकिन इन द मॉडर्न एरा जो है हिरण्यगर्भ इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द योगा. जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ऋषि महर्षि पतंजलि उन्होंने जो कंपाइल किया है 195 वर्सेस, उन्होंने उसको 4 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया. और उसके लिए उन्होंने संस्कृत में लिखा था उसको, लेकिन उसके बाद उसके अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन की हुई है. तो अब हम आते हैं योगा की डेफिनेशंस के ऊपर. तो महर्षि पतंजलि ने सिर्फ एक लाइन लिखी है योग के बारे में. योग को वैसे तो डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशंस आपको मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने लिखा है कि योगश चित्त वृत्ति निरोधः है. चित्त की वृत्तियों का. यस नेक्स्ट पे नेक्स्ट स्लाइड. बस चित्त के वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं एक शब्द में. और अगर हम इंग्लिश में बोला तो योगा इज रेस्ट्रेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड. जितना हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे उसको उतना हम योग के नजदीक पहुंचेंगे. इसी तरह से हमारी जो भगवद गीता है उसमें भी योग की परिभाषा दी है, समत्वम योग उच्यते, यानी इवननेस ऑफ माइंड.
ये जैसे अभी आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, कौन इसके फाउंडर थे, पतंजलि ने इसके लिए क्या लिखा था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आपका जो उन्होंने एक लाइन में जो लिखा है, योगश चित्त वृत्ति निरोध, ये बेसिकली संस्कृत में है। चित्त वृत्ति की वृत्तियों का निरोध करना या उनको रोकना ही योग, restraint of the activities of the mind, and this can be achieved only through the practice. This is not the God gift कि आपने चित्त के विरुद्ध निरोध कर दिया, योग हो गया। उसके लिए वेरियस स्टेप्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता भी समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम, योगा इज स्किलफुलनेस इन एक्शन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now we come to kinds of yoga. There are so many kinds of yoga are there, but basically जो मेन हम मानते हैं उनको 4 पाथ्स मानते हैं, जो अटेनमेंट किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है। तो उसके लिए आपका सबसे पहले आता है कर्म योग, दैट इज योगा ऑफ एक्शन। देन भक्ति योग, that is called yoga of devotion, जैसे कृष्ण भक्ति को हम बोलते हैं, that is called the yoga of devotion. ज्ञान योग, yoga of knowledge. Then comes Raj Yoga, royal yoga of path, and then comes Hatha yoga. This is related only to physical exercises, but राज योगा जिसको बोलते हैं, और इसको हम अष्टांग योग भी कह सकते हैं, जो कि महर्षि पतंजलि ने इवॉल्व किए थे। और आजकल मोस्ट पॉपुलर जो या योगा का जो थ्योरी मानी जाती है वो है आपकी अष्टांग योग, और इसी को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपनी इसको लाइफ में उतार सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके उन्होंने 8 फोल्ड बताया, या 8 स्टेप्स कह सकते हैं आप उसके। फर्स्ट है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें जो ऊपर के जो 5 बताए गए हैं, दे आर एक्सटर्नल पार्ट्स। First 2 are related to the life science or lifestyles. Then comes third is asana. Patanjali had not explained or given any asanas. He just said sthiram sukham asana. Yes, please. I am audible? Yes, you are audible, but you need next slide, I think. Okay, sir. So yama niyam are related to our lifestyle, what should we do in daily life. Then comes asana. So I was telling asan means any posture. Sthiram sukham asanam. In any posture you can stable, that is asana. Not necessarily that you have to do advanced asanas or hard asanas. If we are sitting in a sukhasan, जैसे हमको पालथी मार के बैठना, that is also a asana. If we are sitting in the chair, but the condition is in easy condition, comfortably for a long period of time, that is called asana. Then comes 4th step, pranayam. That is related to the regulation of the breath. इसको हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे. And pratyahar, that is abstraction of the senses. हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो that is called pratyahara. Then comes dharana, that is concentration. तो एक बार हमारा जब इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है तो ऑटोमेटिक हम कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, और जब कंसंट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद आता है ध्यान और मेडिटेशन, विच इज द 7th स्टेप. और लास्ट आता है समाधि. समाधि मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन, जिसका अल्टीमेट गोल है आत्मा से परमात्मा का मिलन. उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है. तो लास्ट के जो तीनों थे वो अपने इंटरनल पार्ट्स की तरफ जाते हैं, और जो 5 शुरू के बताए मैंने वो आपके एक्सटर्नल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम थोड़ा सा इसको यम और नियम को कर लेते हैं. जैसे
अहिंसा जैसा आप सब जानते हैं, सत्य, अस्ते मीन्स चोरी करना। चोरी मीन्स नॉट किसी सामान की चोरी, अगर आप किसी के विचारों को भी चोरते हैं या किसी से अपनी भावना किसी के पे गलत है तो भी वो है। अपरिग्रह, दैट इज नॉन पॉजिटिवनेस, अगर आपके पास जितनी जरूरत है उससे ज्यादा चीज आपके पास है तो वो भी एक अपरिग्रह की गिनती में आता है। देन कम्स रूल्स ऑफ इंडिविजुअल डिसिप्लिन्स, शौच, क्लीनलीनेस, संतोष, कंटेनमेंट, तपा, ऑस्टिन। तपा मीन्स जरूरी नहीं तब में मतलब मैं एक टांग पे खड़ा हूँ कहीं जाके या धूप में खड़ा हूँ, दैट इज नॉट तप, दिस इज ऑस्टिनिटी, आपका डिवोशन, डेडिकेशन, दैट इज कॉल्ड दी तपा। स्वाध्याय, दैट इज इनर एक्सप्रेशन और स्टडीइंग द मटेरियल, गेनिंग द नॉलेज। जितना आप स्वाध्याय करेंगे, नॉलेज को एक्वायर करेंगे, उतना ही आप दूसरों को दे पाएंगे। तो आई एम हैप्पी टू लर्न दैट इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स है, उसमें हो सकता है योगा टीचर्स भी होंगे, तो उनकी इस टाइम डबल ड्यूटी हो जाती है। पहले अपना नॉलेज एक्वायर करें एंड दे पास ऑन टू द देयर स्टूडेंट्स, तब जाके उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। स्वाध्याय के बाद लास्ट आता है ईश्वर प्राणिधान, सरेंडर टू द गॉड, वट एवर एक्ट्स वी आर डूइंग। अगर हम उसको ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारे पर कुछ उसका कार्मिक बंधन नहीं बनता है, और हमने जो भी अच्छा किया वो भी हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, बुरा किया वो भी ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड दी सरेंडर टू दी गॉड। देन कम्स, हम आसन को थोड़ा सा ब्रीफली कर लेते हैं। इसमें 3 क्लासिफिकेशन किए हैं। फर्स्ट है मेडिटेटिव पोस्चर्स, रिलैक्सिंग पोस्चर्स एंड कल्चरल पोस्चर्स। जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में, मेडिटेटिव पोस्चर में आता है पद्मासन एंड सिद्धासन। पद्मासन मीन्स लोटस, इसमें आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हैं और दूसरे इसका बन जाता है जैसे लोटस का पोज, इसमें आप बहुत देर तक बैठ सकते हैं। और जब आपको ध्यान या साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, तो इसके लिए पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, इनमें आप बैठ के, जिसमें आप लॉन्ग टाइम तक बैठ सकें। देन आते हैं आपको रिलैक्सिंग, क्योंकि आप अगर फिजिकली इतना थक जाएंगे तो आपको रिलैक्स करना भी बहुत ही जरूरी है। तो रिलैक्स करने के लिए आपको होता है शवासन, मकरासन, अद्वासन, ज्येष्ठासन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपको सिर्फ रिलैक्स देता है। इसमें आपको बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव नहीं करना होता है, आपको रिलैक्स करते हैं। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो आप एकदम फ्रेश फील करते हैं, और उसके बाद हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। देन आते हैं कल्चरल पोस्चर्स, भुजंगासना, उष्ट्रासना। हम अभी आपको प्रैक्टिकल तो करके नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो आसन है ये सूर्य नमस्कार एक जो एक्टिविटी है जो जिसमें सभी आसनों का समावेश होता है। उसमें प्राणायाम भी है, आसन भी है और शुद्धि क्रिया भी है, उसमें सब आ जाता है। अगर कोई इंसान ज्यादा टाइम नहीं है तो अगर सूर्य नमस्कार कर लेता है, 2-4 प्राणायाम कर लेता है और 10 मिनट का मेडिटेशन कर लेता है, तो उसको जीवन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। That is pranayam. Pranayam means regulation of breath. Breath is most important because our physical body के बाद आपका energy body है, और प्राण वायु जिसको बोलते हैं अपन जो एयर लेते हैं वो प्राण वायु नहीं है, हम एयर लेते हैं, उसमें एक छोटा सा पार्ट ऑक्सीजन होता है, and that too is not prana, that is a fuel for the prana. तो इसके द्वारा हम नॉर्मल श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, ये आपका एक नेचर ने बना रखा है, वो आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी श्वास आएगी और जाएगी। लेकिन जब हम इसको कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए हम इसको पॉज करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड दी प्राणायाम। और जितनी आपका परफेक्शन होगा प्राणायाम में, उतना ही आपको मेडिटेशन में ज्यादा अच्छा। वैसे नॉर्मली 8 प्राणायाम मुख्य माने जाते हैं। मोबाइल दे देना। मुख्य प्राणायाम 8 माने जाते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जयी, भ्रामरी, वस्त्रिका, शीतली, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन 8 में से अगर आप 4-5 प्राणायाम भी रोज कर लेते हैं तो इसका जो आपका ब्रीथ का रेगुलेशन है, और अभी जो पेंडेमिक जो टाइम चल रहा है, इसमें प्राणायाम या ब्रीदिंग की बहुत बड़ी
इम्पोर्टेंस है या रोल है। तो ये आपकी बॉडी को लाइटनेस देता है, आपके सेंसेस को इन्वोक करता है, और इससे आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है, और आप इसके लिए दिन भर आपको चीयरफुलनेस कहते हैं या इनर पीस। इनर पीस इज ऑल्सो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अपन सोचते हैं हमें फिजिकल बॉडी अच्छी है, तो इट इज द बैलेंस ऑफ माइंड बॉडी एंड साउल, तभी आप परफेक्ट हेल्थ को कह सकते हैं, वो अपन मान सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम ब्रीफ में इसको थोड़ा कर रहे हैं। देन कम्स ध्यान और मेडिटेशन। अगर एक इसको लाइन में करें तो इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेर इन देर आर नो विषयास और नो सेंसरी थॉट्स, इज कॉल्ड मेडिटेशन। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट क्लोज योर आईज, आप शरीर को ढीला छोड़ें। अभी हम लास्ट में एक 5 मिनट का थोड़ा सा शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। तो समय की सीमा है, अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, तब तक हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो ध्यान की बात जहाँ तक करते हैं हम, तो इसमें भी 3 तरह के ध्यान होते हैं, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान एंड ज्योतिर्मय ध्यान। और मेडिटेशन के जो बेनिफिट्स हैं, लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर। इसमें आपको अपने अंतर मन से रियलाइज करने का मौका मिलता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये अपना काम नहीं है, ये तो ऋषि मुनियों का काम है, लेकिन नहीं। अगर आपको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं साथ में। और ये 5 मिनट से लेके आपकी जो कैपेसिटी है, यू कैन डू फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, 1.5 आवर, इट इज अप टू यू। हाउ मच कैपेसिटी, हाउ मच टाइम डू यू हैव। So these are the 8. Then again comes last is samadhi. We cannot discuss here because it is the ultimate goal. जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो कुछ बचता ही नहीं है। This is last state of the human being or living being. लेकिन आजकल जो अपन बोलते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ हठ योगा। तो उसके लिए उन्होंने सो मेनी पोस्चर्स भी बताए हैं, उसमें मुद्राएं बताई है। जैसे षटकर्म की बात की थी अपन ने, धोती, नौली वगैरह, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। षटकर्म जिसको बोलते हैं, देयर आर 6 प्रोसेसेस। आसना, अगेन बॉडी पोस्चर। मुद्रा, मुद्रा इज अनदर साइंस because our fingers, they are representing all the 5. So there are so many effects. If you join Agni Mudra with the middle finger, then becomes Akash Mudra. If you join our thumb with the index finger, that becomes Vayu Mudra. If you join our thumb with the ring finger, then it becomes Prithvi Mudra. And if you join our thumb with the, if you can see here, our little finger, then it becomes Varun Mudra or Jal Mudra. So this is also sign, and there are so many mudras which can affect our whole body parts, but we will not discuss here in detail. So जैसा मैं आपको बताया था, धोती जो बताया है वो हमारे पूरे शरीर की क्लींजिंग करता है। बस्ती जैसा बताया आपको, बॉल साफ, नेति, जल नेति भी बताया आपको अभी, नौली एंड त्राटक। त्राटक इज समवॉट प्रैक्टिस विच इज डन इन फ्रंट ऑफ यू। आप मोमबत्ती कह सकते हैं आप उसको, या आप दिया भी जला सकते हैं सामने, और आई लेवल पे उसको रख के, और आपको उसको कंटिन्यूस देखना पड़ता है, इंसेंटली आपको देखना पड़ता है। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। So up next comes, next slide please. षटकर्मा हो गया। Next, next, next. Aspects of yoga. Yes, sir. Because why we should do yoga? There are 3 aspects: physical, mainly physical, mental, and spiritual. This is a combination of both. So yoga energizes, relaxes, strengthens and promotes our correct breathing. इससे हमारी जो सांस लेने की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होती है। फिजिकल पोस्चर से आपका शारीरिक
आउटलुक अच्छा होता है, आप में अवेयरनेस बनी रहती है, आप में उत्साह बना रहता है। और योगा अनलॉक्स क्लियर एंड वन पॉइंटेड थॉट्स। इसमें आपकी सोचने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है, फर्मनेस आती है, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको कहते हैं हम आत्मविश्वास, वो बढ़ता है। और आपका जो स्ट्रेस है वो आपका शांति में कन्वर्ट हो जाता है, शांति में कन्वर्ट हो जाता है। मोबाइल। इसी तरह से हठ योगा की जो प्रैक्टिसेस है, इसमें आसन, प्राणायाम वगैरह, ये सभी इंटर रिलेटेड है। उसके बाद आज की डेट में बहुत से मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक चीज वही रहेगी जो वर्षों से चली आ रही है, एंशिएंट टाइम से। हालांकि अभी योग फॉरेन में जाके योगा बन के हमारे यहाँ वापस आ रहा है, हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। उन्होंने किया कुछ नहीं है, बेसिक चीजें हमारे यहाँ, इसलिए उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, वेरिएशंस किए हैं, और उसको फिर हमारे यहाँ के वो दे आर एक्चुअली डूइंग इस मार्केटिंग। और हम अपनी पुरानी जो विधाएं उसको हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन ये एक नेचुरल पार्ट है कि जब थोड़ा वेरिएशन होगा, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशंस होगा, तो उसको लोग करेंगे। तो अभी जैसे 21 जून आ ही रहा है, हम इसी दिन क्यों मनाते हैं, या इसी दिन को क्यों चुना? इसलिए कि आज का दिन 21 जून होता है, वो साल का सबसे बड़ा दिन होता है। और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो भी रोज योगा प्राणायाम करते हैं। वो ये सच नहीं जाए जिस दिन, और उनका आप एनर्जी लेवल देखिए। ज्यादा हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल है, रामदेव जी को देख लीजिए आप, और भी कई जैसे अपन फॉरेनर्स भी देख लीजिए आप, वो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। और इसका रिजल्ट भी आपको इंस्टेंट मिलता है। ऐसा नहीं कि आज आपने किया 4 दिन बाद मिलेगा, नो, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो इसके हार्ट योगी प्रैक्टिसेस भी होगी। योगा टीचेस राइट आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव ए गुड एंड हेल्दी लाइफ, हाउ टू डील विद ourselves and others। जैसा आप एक नेक्स्ट चलिए, मैं कुछ आपको पिक्स दिखा देता हूँ। नेक्स्ट, ये जो पिक्स है, मैंने बताया ना, पद्मासन या लोटस पोस्चर, बैक बैक, यस, दिस इज ए मेडिटेटिव पोज। इसमें आपका हथेलियां एक के ऊपर दूसरी है। दूसरा है उष्ट्रासन है, दिस इज फॉर बैकवर्ड बेंडिंग, दैट इज कैमल पोज। एंड नीचे जो है आपका, दैट इज शवासना। शवासन मींस डेड बॉडी कह सकते हैं, जैसे डेड बॉडी है वैसे आपको पूरा शरीर को ढीला छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज त्राटका, बैक बैक, यस, राइट। यू कैन सी आई लेवल पे आपका लिड जली हुई है, उसको आपको ओपन आइज से 5 to 10 मिनट्स तक देखना है। जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं आ जाए तब तक आपको उसको देखना है। नेक्स्ट, today we will do one pranayam, and that is Shitali, because nowadays very hot season is there in June. So there are 2 pranayams which are performed in summer season. So I will demo you a first Shitali pranayam, only one pranayam for today. That is Shitali, that is cooling process. इसके लिए आप अपनी जबान जो है उसको बाहर निकाल के फोल्ड कर लीजिए दोनों साइड से, और मुंह से श्वास भरिए जितनी आप भर सकते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। जितनी आप भर सकते हैं अंदर तक खींच लें, फिर उसको कुछ देर रोके अंदर ही, फिर दोनों नॉस्ट्रल से उसको बाहर निकालें। अगर आप इसकी 4 बार 5 राउंड कर लेंगे तो आपको इंस्टेंट आपको कूलिंग मिलेगी। तो कूलिंग के लिए 2 प्राणायाम है, शीतली है, दूसरा है शीतकारी। दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। उसमें आपको दोनों दांतों को बंद करके आप अंदर श्वास भरनी है। आप देखेंगे आपको ठंडी हवा अंदर जा रही है, ये नेचुरल एसी है, तो आपको ठंडक मिलेगी इससे। आपका जो शरीर का टेम्परेचर है वो एकदम नॉर्मल पे आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ये कुछ पिक्स क्रियाओं के। फर्स्ट है आपको नेति दिख रहा है, फर्स्ट में सूत्र नेति, नेक्स्ट आप जल नेति परफॉर्म बाय वाटर, धोती आप कपड़ा मुंह में रख के अंदर निकालते हैं। ये तीन प्राणायाम के तीन पार्ट होते हैं, पूरक, रेचक और कुंभ का, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड रिटेनिंग। रिटेनिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम श्वास को जितनी लंबी और गहरी करेंगे उतना ही हमको ज्यादा फायदा होगा, एक एक सेल तक हमारा ऑक्सीजन पहुंचेगा। एंड जब हम उसको कुंभक बोलते हैं, जिसको हम रिटेन करते हैं, तो वो एक्सपांड होती है अंदर। और एक्सहेलेशन भी अब इतना इंपॉर्टेंट, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। और अब लास्ट में हम करेंगे इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड। व्हाई शुड वी डू, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा? दैट इज फिजिकल प्योरिटी, क्योर्स द प्रिवेंशन ऑफ द फ्रॉम डिजीज, कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है, आपका मेंटल टेंशन कम होता है, आपका शरीर की सुंदरता बढ़ती है, रिलैक्सेशन मिलता है, आपके बॉडी का पोस्चर करेक्ट होता है। और योगा कोई मुश्किल चीज नहीं, आप इजी से इजी आसन करिए, डोंट गो फॉर एडवांस आसनास। आपका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, आप में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, रिड्यूसेस ओबेसिटी, जो मोटापा होता है वो कम होता है, improves health, enhances moral and ethical values. So before winding up my session, we will do just 5 minutes meditation, that is happiness meditation. So you have to do only one thing, you have to close your eyes and open your mind. Any comfortable position में आप बैठ जाइए, सिर्फ only 5 minutes. Keep your eyes closed. Sit in any comfortable position. Deep inhalation. एक गहरी लंबी श्वास लें, छोड़ें, एक और लंबी गहरी श्वास लें, उसको छोड़ें। जब आप श्वास भरें, आपका ध्यान दोनों नॉस्ट्रल्स पर, जब आप श्वास छोड़ें, आपका ध्यान पांव की तरफ। पूरा ध्यान श्वासों पर, नासाग्र से कंठ, कंठ से हृदय, हृदय से नाभि स्थल तक श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। कोई भी विचार आते हैं उनको आने दें, उनको रोके नहीं, उनके साथ बने रहें, और जब वो जाए उनको जाने दें, उसको इग्नोर करते रहें। पूरा शरीर एकदम शांत है, शरीर स्थिर है और मन शांत। शांत मन, शांत चित्त, विचारों का आना कम हो जाता है। जो ही आपका ध्यान आपके दोनों नॉस्ट्रल्स पर रहता है तो आपके विचारों पर कंट्रोल हो जाता है। अब अपना ध्यान आप अपने हार्ट पर ले जाएं। अनाहत चक्र, एनर्जी सेंटर, हार्ट। और आज सुबह से लेकर अब तक हैप्पी मोमेंट को याद करें। जब आपको खुशी मिली हो, किसी बच्चे से बात की हो, कोई जोक सुना हो, या आपके दोस्त की कोई पुरानी याद आ गई हो, सुबह से नहीं 24 घंटे के अंदर अगर आपको ऐसी कोई घटना याद आती है तो उसको याद करें और उसको फील करें आपके हृदय में कि वो खुशी आपको मिल रही है। अब अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र, जो कि आपका डिवाइन हार्ट है, वो अपना फिजिकल हार्ट, ये आपका डिवाइन हार्ट है। यहाँ पर आप प्राकृतिक सुंदरता को महसूस करें, किसी पहाड़ को, चिड़िया की आवाज, झरने की आवाज, हवा की आवाज, पत्तियों की आवाज, किसी चिड़िया के चहचहाना,
उसको महसूस करें। ये आप देखते हैं हमेशा, इसको आप महसूस करें। और अगले 2 मिनट तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ म्यूजिक पे ध्यान देना है। आंखें बंद ही रखें अभी, और एक्सपीरियंस योर एक्सपीरियंसेस। आपके शरीर के अंदर जो परिवर्तन हुआ है उसको आप महसूस करें, फील करें। आप दोनों हथेलियों को घिसें, हथेलियों को आपस में रगड़ें, आंखों के ऊपर रखें और धीरे से हाथ हटाएं। तो ये मेरा सेशन समाप्त, लेकिन हम प्रार्थना के साथ समापन करेंगे इसका। विश्व कल्याण के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद मेरा सेशन समाप्त होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी प्राणी सुखी हों दुनिया में, सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ हों, किसी को भी कोई कष्ट नहीं हो। इसी भावना के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।